بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کریں اور سب سے پہلے بات کریں نئے ٹیکس نہ لگائیں، ٹیکس نیٹ بڑھائیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے ٹیکس بڑھانے کی تجاویز رد کر دی۔ 9 رجسٹرڈ ریسٹورنٹ شادی ہالز کی رجسٹریشن کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ مریم نواز نے رجسٹریشن کے اقدامات کی منظوری دے دی، کہا عام آدمی پر مالی بوجھ نہیں ڈالنا چاہتے، تنخواہ دار ٹیکس دیتا ہے، کروڑوں آمدن والا ٹیکس نہیں دیتا۔ ٹیکس چوری کرنے والے مزے کریں، ایسا نہیں ہوگا۔ پنجاب ریونیو اتھارٹی اور دیگر ڈپارٹمنٹس کو ٹاسک تفویض کر دیا گیا۔ پنجاب میں 9 رجسٹرڈ ریسٹورنٹ شادی ہالز کو رجسٹریشن کروانا ہوگی۔ حکومت نے 9 رجسٹرڈ ریسٹورنٹ شادی ہالز کی رجسٹریشن کا فیصلہ کر لیا۔ صوبے بھر میں چھوٹے بڑے ریسٹورنٹس کی رجسٹریشن کے لیے اقدامات کی ہدایت کر دی۔ وزیر اعلیٰ نے خصوصی اجلاس میں رجسٹریشن کے فیصلے کی منظوری دے دی۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے ٹیکس بڑھانے کی تمام تجاویز مسترد کر دی۔ وزیر اعلیٰ نے متعلقہ اداروں کو ہدایت کی کہ ٹیکس نہیں، ٹیکس نیٹ ورک بڑھائیں۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے کہا کہ ٹیکس بڑھا کر عوام پر بلا وجہ بوجھ ڈالنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کہا کہ 2 لاکھ تنخواہ لینے والا ٹیکس دیتا ہے اور کروڑوں آمدن والا ٹیکس نہیں دیتا۔ رجسٹریشن کروانے والے کو سزا ہو اور ٹیکس چوری والے مزے کرتے رہیں، یہ نہیں ہوگا۔ سابق نگراں وفاقی وزیر ڈاکٹر گوہر اعجاز نے حکومت کو بجٹ تجاویز پیش کر دیں، کہا صنعت کاری ہماری اولین ترجیح ہونی چاہیے، مستقل 5 سال کی صنعتی اور برآمدی پالیسی ضروری ہے، شرح سود 6% اور صنعت کے لیے توانائی کے نرخ 9 سینٹ فی یونٹ بہت اہم ہے۔ تنخواہ دار افراد کے لیے زیادہ سے زیادہ ٹیکس کی شرح 20% تک ہونی چاہیے۔ سپر ٹیکس صرف ان کارپوریشنز پر ہو جن کا منافع 10 ارب روپے سے زیادہ ہو۔ صنعت کاری ہماری اولین ترجیح ہونی چاہیے، مستقل 5 سال کی صنعتی اور برآمدی پالیسی ضروری ہے۔ سابق نگران وفاقی وزیر ڈاکٹر گوہر اعجاز نے حکومت کو بجٹ تجاویز پیش کر دیں۔ سابق نگران وفاقی وزیر ڈاکٹر گوہر اعجاز نے بجٹ تجاویز کے حوالے سے سوشل میڈیا پر اپنے پیغام میں کہا کہ شرح سود 6%، صنعت کے لیے توانائی کے نرخ 9 سینٹ فی یونٹ بہت اہم ہیں۔ تنخواہ دار افراد کے لیے زیادہ سے زیادہ ٹیکس کی شرح 20% تک ہونی چاہیے۔ سابق نگران وفاقی وزیر ڈاکٹر گوہر اعجاز نے کہا کہ سپر ٹیکس صرف ان کارپوریشنز پر ہو جن کا منافع 10 ارب روپے سے زیادہ ہو۔ خصوصی صنعتی زونز میں انفراسٹرکچر، عالمی سطح پر مسابقتی توانائی کی شرح ہو، زراعت کو جدید بنانا، پیداواری صلاحیت کو پیمانہ بنانا اور یقینی بنانا ہوگا۔ لاہور ڈویژن میں صفائی کا 72 گھنٹے آپریشن مکمل ہوا، 54,888 ٹن علائشوں کو ٹھکانے لگایا گیا۔ LWMC نے گزشتہ سالوں کے ریکارڈ توڑ ڈالے۔ مریم نواز کا ستھرا پنجاب کا خواب پورا ہوا۔ مخالف بھی مان گئے کہ عید پر ایسی صفائی کسی اور صوبے میں نہیں دیکھی گئی۔ صوبائی وزیر بلدیات ذیشان رفیق کی میڈیا ٹاک، صوبائی وزیر رمیش سنگھ اروڑہ، کمشنر لاہور زید بن مقصود، بابر صاحب دین بھی ہمراہ تھے۔ لبرٹی چوک میں عید الاضحیٰ کی گرینڈ اختتامی تقریب منعقد ہوئی۔ وزیر بلدیات ذیشان رفیق، وزیر اقلیتی امور رمیش سنگھ اروڑہ، کمشنر لاہور ڈی سی لاہور سمیت CEO LWMC نے بھی شرکت کی۔ وزیر بلدیات کا کہنا تھا کہ اس سال ریکارڈ صفائی کا کام کیا گیا۔ ستھرا پنجاب نے مسائل کو کم کیا ہے۔ پنجاب بھر میں مثالی کام کیا گیا ہے۔ منسٹر صاحب فرما رہے تھے یہ 4 دن کا آپریشن تھا جس میں ایک اچھی خاصی جو ٹنیج تھی ویسٹ کی وہ اٹھا کے اس کو طرف کیا گیا، اور میں خاص کر اپنے ہیروز کو سلام پیش کرتا ہوں جن کو وزیر صاحب نے ہیروز کہا ہے۔ پہلی دفعہ یہ ہوا ہے کہ ادھر سے قربانی ہو رہی ہے اور تھوڑی دیر بعد لاشیں اٹھائی جا رہی ہے۔ تو میں منسٹر صاحب آپ کو اور آپ کی پوری ٹیم کو اور لاہور کے حوالے سے کمشنر صاحب آپ کو، ڈی سی صاحب کو، بابر صاحب کو، اور جہاں جہاں پہ ہمارے ڈی سی صاحبان ہیں، کمشنر صاحبان، اور خاص کر ہماری جتنی بھی WMCs ہیں جس طرح لاہور کی اور باقی بھی جن ڈویژنس کی ہماری WMCs جنہوں نے یہ کام کیا، آپ سارے تعریف کے لائق ہیں۔ میں چیف منسٹر پنجاب کی اس ویژن کو سلام پیش کرتا ہوں۔ کمشنر لاہور زید بن مقصود کا کہنا تھا کہ سینیٹری ورکرز نے دن رات کام کیا، تمام شکایات کا فوری ازالہ بھی کیا گیا۔ میں آپ کو تھوڑی سی سٹیٹس بتانا چاہوں گا لاہور ڈویژن کی بھی، کچھ اس میں سے ذکر کر چکے ہیں منسٹر صاحب کہ لاہور کے اندر 55,000 کے قریب ہم نے اٹھائے، 88,000 پورے ڈویژن میں سے علائشیں اٹھائیں۔ اسی طرح سے کمپلینٹس کو اگر لیں، اب کمپلینٹس ہماری اسپیشل برانچ بھی مانیٹرنگ کر رہی ہوتی ہے، اس کے علاوہ سیف سٹی دیکھ رہی ہوتی ہے، چیف منسٹر کی اپنی ٹیمز ہوتی ہیں جو دیکھ رہی ہوتی ہیں، 1139 لاہور ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کا اپنا نمبر ہے۔ تو اس کی اگر فگرز ہم دیکھیں تو وہ تقریباً ہم نے 20,000 کے قریب کمپلینٹس 3 دن میں ہر قسم کی ملا کے ریزالو کی ہیں، اور ان کا ایوریج ٹائم فار کمپلیشن جو ہے وہ 45 منٹ سے 1.25 گھنٹے کے درمیان رہا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی جانب سے تمام ورکرز کو 10,000 روپے انعام کا اعلان بھی کیا گیا
اور ملازمین کو خراج تحسین بھی پیش کیا۔ لاہور ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کے ورکرز کو ایک تنخواہ بطور بونس بھی فراہم کی جائے گی۔ کیمرہ مین زاہد ملک کے ساتھ بسام سلطان، سٹی 42۔ اب یہاں پر بات کریں گے موسم کی، تو شہر میں سورج آج بھی سوا نیزے پر آ گیا۔ تپش سے شہری پریشان، محکمہ موسمیات نے درجہ حرارت میں مزید اضافے کی پیشگوئی کر دی۔ سڑکیں تندور کی طرح تپنے لگیں، زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 46 ڈگری تک گیا۔ محکمہ موسمیات نے مطلع صاف رہنے کی پیشگوئی کر دی ہے۔ پی ڈی ایم اے نے 12 جون تک ہیٹ ویو کا الرٹ جاری کر دیا۔ شہریوں کو محتاط رہنے کی ہدایت بھی جاری کی گئی۔ شہر میں سورج سوا نیزے پر آ گیا، تپش سے شہری پریشان، زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 46 ڈگری تک گیا۔ محکمہ موسمیات نے درجہ حرارت میں مزید اضافے کی پیشگوئی کر دی۔ پی ڈی ایم اے نے 12 جون تک ہیٹ ویو کا الرٹ جاری کر دیا، شہریوں کو محتاط رہنے کی ہدایت کی۔ پی ڈی ایم اے نے 12 جون تک ہیٹ ویو کا الرٹ جاری کر دیا۔ ساؤتھ پنجاب کے اضلاع بہاولپور، رحیم یار خان، ڈیرہ غازی خان اور ملتان میں ہیٹ ویو کی شدت زیادہ ہو سکتی ہے۔ ماہرین نے شہریوں کو محتاط رہنے کی ہدایات جاری کر دیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ شہری زیادہ سے زیادہ پانی کا استعمال کریں اور بلا ضرورت گھروں سے باہر نہ نکلیں۔ گھروں سے باہر نکلنے کی صورت میں سر ڈھانپ لیں۔ گرمی کا زور کم ہونے کا نام نہیں لے رہا اور سورج جیسے آگ برسا رہا ہو۔ درجہ حرارت 47 ڈگری کو چھو گیا تو شہریوں نے راحت کی راہ ڈھونڈی اور وہ راہ نکلی ایک گلاس ٹھنڈے شربت کی صورت میں۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ شہر کے مختلف علاقوں میں شربت کے سٹالز پر رش لگ گیا۔ سندل، املی، آلو بخارا اور فالسا شہریوں کی پسندیدہ شربت بن گیا۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ اتنی گرمی میں ایک گلاس شربت پینا سکون دیتا ہے۔ یہ نہ صرف ٹھنڈا ہوتا ہے بلکہ توانائی سے بھی بھرپور ہے۔ شربت پینے کے لیے رکیں گے، گرمی بہت زیادہ ہے، اس کے لیے وجہ سے ہم جا رہے تھے تو اپنے عزیزوں کے طرف تو میں نے شربت پی لیں، شربت پی کے پھر ہم جا۔ گرمی کے توڑ کے لیے نہ صرف شہری بلکہ طبی ماہرین بھی ان قدرتی اجزاء سے بنے مشروبات کو مفید قرار دیتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ مشروبات وائٹامنز اور منرل سے بھرپور ہوتے ہیں، پانی کی کمی کو پورا کرتے ہیں اور ہیٹ ویو سے بھی بچاتے ہیں۔ سندل اور آلو بخارے کے شربت خاص طور پر جسم کو ٹھنڈک دیتے ہیں۔ گرمی بہت شدید گرمی پڑ رہی ہے، ٹھنڈے مشروبات کا استعمال کر رہے ہیں اور رومال وغیرہ اوڑھ رہے ہیں تاکہ گرمی نہ لگے ہمیں۔ گرمی کی شدت نے جہاں پریشان کیا وہیں شربت فروشوں کی چاندی ہو گئی۔ شہری بھی خوش اور صحت بھی محفوظ۔ کیمرہ مین ثاقب کے ساتھ افیہ رضوان، سٹی 42 لاہور۔ عید قربان کے تیسرے روز بھی گھروں میں پکوانوں کا سلسلہ جاری رہا۔ ہر طرف مزیدار کھانوں کی خوشبوئیں پھیل گئیں۔ شہری ایک دوسرے کے مہمان بنے اور دعوتیں چلتی رہیں۔ مرد حضرات نے بھی کچن میں خواتین کا بھرپور ساتھ دیا۔ خواتین کو چھٹی دینے کے لیے مرد حضرات خود بڑھ چڑھ کر پکوان بناتے رہے۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ اپنی بیگمات کو آرام کا موقع دینا چاہتے ہیں اور خود کھانا پکا کر ان کی خدمت کرنا چاہتے ہیں۔ یہ انفیکٹ پہلے سب سے تو میں نے مٹن کلیجی بنائی ہے، اس کے بعد ہم انشاءاللہ تعالی آج مٹن شنواری اور مٹن پلاؤ بنائیں گے۔ تو کچھ بچے مٹن چونکہ شنواری نہیں کھاتے اس لیے اس کے لیے کلیجی بھی بنا لی کہ ورائٹی آف فوڈ ہو جائے گا، تو اس طرح سے ذرا بہتر ہو جائے گا آج، چونکہ ایک سال بعد ہمیں بھی موقع ملتا ہے کچن میں کام کرنے کا، تو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ بھرپور جوہر دکھائیں اپنے۔ والد کے ساتھ بچے بھی کچن کے کاموں کے لیے پرجوش نظر آئے۔ کہتے ہیں کہ مٹن شنواری اور مٹن پلاؤ بنا رہی ہیں، ماں کو اسپیشل محسوس کروانے کے لیے تیاری کی ہے۔ 2 دن ہماری مما نے ہمارے لیے بہت مزے کے کھانے بنائے ہیں، لیکن آج پاپا نے کہا تھا کہ آج آپ کی مما کو ریسٹ دیتے ہیں اور ہم آج خود کھانا بنائیں گے، تو آج ہم نے ایک مٹن پلاؤ بنایا ہے اور مٹن شنواری کڑھائی بنائی ہے۔ مرد حضرات کا کہنا تھا کہ کھانا پکانا بھی ایک فن ہے اور اس میں بھی مہارت حاصل ہونی چاہیے۔ کیمرامین زامن عباس کے ہمراہ فریحہ بطول، سٹی 42۔ عید کے تیسرے روز فیملیز دوست احباب کا ریسٹورنٹس میں رش۔ بچے بھی عید کے تیسرے روز گھر والوں کے ساتھ خوشی میں شریک ہوئے۔ گھر میں گوشت کھانے کے بعد ریسٹورنٹس میں مختلف خوابوں سے لطف اندوز، کسی کو ملیشین چکن پسند تو کوئی باربیکیو سے لطف اٹھانے لگا۔ عوام کا کہنا ہے کھانا تو بہانا ہے، اکثر مقصد تو احباب کے ساتھ وقت گزارنا ہے۔ ماشاءاللہ الحمدللہ عید تو بہت اچھا گزرا ہے۔ آج آئے ادھر کھانا کھانے کے لیے تو کڑھائی منگوائی اور بیف پلاؤ وغیرہ منگوائے۔ ہوٹل مالک نے کہا کہ لوگ گھر میں مٹن کھانے کے بعد تھک جاتے ہیں اور یہاں ملیشین چکن اور دیگر خوابوں کو پسند کرتے ہیں۔ لوگ چاہتے ہیں کہ کچھ انہیں روٹین سے ہٹ کے کچھ چیز ملے، ٹھیک ہے، تو ملیشین جو تندوری چکن ہے، جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ وہ ہماری ایک یونیک اور سگنیچر آئٹم ہے، لوگ اس کو پسند بھی کرتے ہیں، وہ چیزان کے ساتھ کھائی جاتی ہے،
मीट जो है वो लोग खा खा के 3 दिन तंग आ गए थे। इस वजह से लोगों का रुझान जो है वो मलेशियन तंदूरी चिकन की तरफ बहुत ज़्यादा है। बच्चे भी बड़ों के साथ खुशी में शरीक। बच्चों का कहना था यहाँ आकर बेहद अच्छा लगा है। यहाँ खाना खाना मुझे यहाँ का टेस्ट बहुत अच्छा लगा। मैं यहाँ मुझे खाना खाकर अच्छा लगा। शहरियों का कहना था कि अनवाउ अक़साम के खाबे और दोस्त अहबाब की गप्पें ईद की खुशी को दुबाला करती हैं। कैमरामैन मोहम्मद नदीम के हमरा मोहम्मद इब्राहिम कुरैशी, सिटी 42 लाहौर। शाहपुर कांजरा मवेशी मंडी वेरान रही। व्यापारी अपने जानवर लिए खरीदार के मुंतज़िर रहे। आधी कीमत पर भी जानवर बेचने के लिए तैयार नजर आए। शाहपुर कांजरा मवेशी मंडी वीरान हो गई, मगर व्यापारी जानवरों के लिए खरीदारों के मुंतजिर नजर आए। उनका कहना था कि आधी कीमत भी मिले तो जानवर बेच देंगे। व्यापारी 20 मन से जायद वजनी बैल 7 लाख रुपए में देने को तैयार था। बावन नगर से आए हैं, बहुत मंदा होया, 8 लाख में सेल कर देंगे। 8 लाख में दे देंगे इंशाल्लाह। 7 लाख में हाँ जी बिल्कुल। वजन कितना इसका? वजन इसका जी 28 मन। हाँ जी, जिंदा गोश्त 14 मन। व्यापारियों का कहना था कि ग्राहक महंगे जानवर के भी कम दाम लगा रहा है। कुछ जानवर बाकी रह गए हैं। माशाल्लाह 40 जानवर लियांदे सी, 2 जानवर रह गए ने, 38 जानवर वेचते ने। अल्लाह शुक्र है, जो मुकद्दरा से कोई वध वेच गए ने, कोई घट वेच गए ने। 5 मांगते थे, 4.25 का लिया हुआ है। 5 मांगते थे, अब 2.5 लाख लगता है। 15 लाख वाला जानवर 7 लाख और 6 लाख वाला 3 लाख में फरोख्त हुआ। मंडी में बकरे मौजूद नहीं थे। कैमरामैन जमील अहमद के साथ अशरफ भुट्टा, सिटी 42। कल से तमाम दफातर और इदारे खुल जाएंगे। ईद का तीसरा रोज शहर के बस अड्डों पर परदेसियों का अपने आबाई इलाके से वापसी के लिए रश बढ़ गया। इस हवाले से मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। ईद के तीसरे रोज बस अड्डों पर परदेसियों का रश बढ़ गया। कल से तमाम दफातर और अदारे खुल जाएंगे, जिसके लिए परदेसियों ने वापसी की राह पकड़ ली और ईद उल अज़हा मनाने के बाद लाहौर वापस आना शुरू कर दिया है। परदेसियों का कहना है कि मंगल से ड्यूटी पर जाना है, इसलिए आज आबाई शहर से वापस आ गए हैं। छुट्टियाँ खत्म हो गई हैं ईद की, तो लोग अपने अपने ऑफिस के लिए वापस निकल रहे हैं। कुछ देहात से, कुछ शहरों से, कुछ 200 रुपये, 100 रुपये, 150 रुपये कुछ ज़्यादा ले रहे हैं पहले की निस्बत। जैसे कि मैं हासिलपुर से आया हूँ, सुनने में किराया उसका जो 1650 रुपये था, लेकिन मैं 1900 रुपये किराया दे के आया हूँ। परदेसियों का कहना है कि रश ज्यादा होने के बाइस ट्रांसपोर्टर्स को जहां मौका मिलता है 150 किराया ज्यादा भी वसूल कर लेते हैं। ईद के दिन आपको पता है, फिर 100, 200, 300 एक्स्ट्रा ले लेते हैं। बहुत ज्यादा रश है, बहुत ज्यादा, इतना रश है गिन नहीं सकते। ट्रांसपोर्टर्स का कहना है कि डीजल महंगा होने के बावजूद रेट लिस्ट के मुताबिक किराया वसूल किया जा रहा है। किसी से 1 रुपया भी इजाफी वसूल नहीं किया। कैमरामैन एहसन जावेद के हमरा जुनेद रियाज, सिटी 42 लाहौर। ईद के तीसरे रोज़ दावतों के साथ आवाम के सैर सपाटे। बच्चा पार्टी वालिदैन के हमरा पार्क पहुँचे, झूलों से लुत्फ उठाया, खूब मौज मस्ती की। शहरियों ने खाबों पर भी हाथ साफ किए। ईद के तीसरे रोज बच्चा पार्टी वालिदैन के हमरा पार्क पहुंची। बच्चों ने खूब मौज मस्ती की, झूलों से लुत्फ उठाया। शहरियों ने लजीज खानों पर हाथ साफ किए, गोल गप्पे के स्टॉल्स पर रश रहा। फैमिलीज का कहना था कि ईद का तीसरा रोज बच्चों के लिए वक्फ होता है। तो बच्चों को तो एंटरटेन करना चाहिए ना। कुर्बानी के 2 दिन हमारे होते हैं, तीसरा दिन तो बच्चों को लास्ट होता है ना। जो अपनी फैमिली के साथ गुजरती है ना, वो अल्हम्दुलिल्लाह वो अच्छी गुजरती है। खेला है, तस्वीरें बनाई हैं। हम आज आए हैं यहाँ पे, मैं बहुत अच्छा लग गया। पहला दिन भी बिजी होता है, आपको पता ही है, कुर्बानी होती है। फिर दूसरा दिन मेहमानों का आना जाना। फिर तीसरा दिन जो होता है वो बच्चों के लिए रखते हैं, अपने लिए रखते हैं, ताकि हम पार्क में आए, इंजॉय करवाएं। तो बहुत अच्छा लगा मैं पार्क में आके। ईद के तीसरे रोज बच्चों ने खूब हल्ला गुल्ला किया, मनपसंद खानों से लुत्फानंदोज हुए। कैमरामैन जाहिद मलिक के हमरा तौकीर अकरम, सिटी 42। फैमिलीज की बड़ी तादाद ने आइसक्रीम पार्लर का रुख कर लिया। बच्चे बड़े सभी गर्मी की शिद्दत को कम करने के लिए आइसक्रीम की दुकानों पर पहुंच गए। इस हवाले से मजीद बात करेंगे तौकीर अकरम से। जी तौकीर, बताएगा। ईद का तीसरा रोज़ हो और आइसक्रीम ना हो तो ऐसा तो मुमकिन ही नहीं है। आखिरी रोज़ है और फैमिलीज़ की बड़ी तादाद ने बरकत मार्केट का रुख किया है और उनका कहना है कि गर्मी की शिद्दत जितनी ज़्यादा है उसको कम करने का वाहिद हल जो है वो आइसक्रीम है। हमारे साथ छोटे छोटे नन्हे बच्चे भी मौजूद हैं जो आइसक्रीम को इंजॉय कर रहे हैं। उनसे बात करते हैं और उनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या हाल है आपका? मैं ठीक हूँ। क्या नाम है आपका? हुरैन। बताओ, आपने ईद कैसी गुजारी? मेरी ईद बहुत ही अच्छी गई। मैंने उस पर बहुत ज़्यादा एंजॉय किया और चीज़ें भी खाई। अभी आप क्या खा रही हो? ओरियो शेक पी रही हूँ। ओरियो शेक पी रही हो। आपका नाम क्या है? मेरा नाम बीरा। बीना, आपने ईद पे कैसे एंजॉय किया? क्या क्या खाया? मैंने 1 किलो ड्राई खाया है और आइसक्रीम खाई है।
और क्या खाया? और झूले लिए हैं। झूले लिए जी। आप बताओ जी, आपका क्या नाम है? हरम। अच्छा, आप अपने बताओ ईद पे क्या क्या खाया आपने? लेस। और कुछ नहीं। बस लेज ही खाई है? और आप क्या खा रहे हो आप? आइसक्रीम। तो पोइम सुना दो कोई। आती है कोई पोइम? आपको आती है कोई पोइम? Twinkle twinkle little star, how I wonder you are. वेरी गुड। आप सुनाओ जरा पोइम। 1 2 बकबशु 3 4 शटकारा 5 6 8 7 8 9 10. वेरी गुड। अब आपकी बारी। Go away, come again another day. Rabu baby don't tell go away. वेरी गुड। क्लैपिंग कर दो बच्चों के लिए। आज यकीनन ये छोटे छोटे बच्चे हैं और ईद इन्हीं की होती है, और इसीलिए लोग जो हैं वो बाहर निकले हैं फैमिलीज़ के साथ और भरपूर अंदाज में आज के इस दिन को, आखिरी ईद का जो तीसरा रोज़ है, उसको आइसक्रीम के साथ भरपूर अंदाज में इंजॉय कर रहे हैं। जी तौकीर, बहुत शुक्रिया आपका। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ के जनरल मैनेजर पीटीवी लाहौर डॉक्टर कैसर शरीफ के घर आमद। वालिद के इंतकाल पर इजहार ताज़ियत फातिहा खानी की। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने डॉक्टर कैसर शरीफ के वालिद मरहूम के साले सवाब के लिए फातिहा खानी की। इस मौके पर अताउल्लाह तारड़ का कहना था, वालिद का साया अजीम नेमत होता है, उनकी जुदाई नाकाबिले तलाफ़ी सदमा है। दुख और गम इस घड़ी में डॉक्टर कैसर शरीफ और उनके अहले खाना के साथ बराबर के शरीक हैं। अल्लाह ताला मरहूम के दर्जात बुलंद, सोगवार ख़ानदान को सब्र जमील अता फरमाए। GOR में मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा ख्वाजा अहमद हसन ने ईद का तीसरा रोज़ लीगी कारकुनान के साथ गुजारा। वर्कर के साथ ईद मिली और मिठाई भी खिलाई। सीनियर लीगी रहनुमा ख्वाजा अहमद हसन का कहना था कि तमाम लीगी वर्कर्स और दोस्त अहबाब किसी फैमिली मेंबर से कम नहीं, इन्हीं के साथ असल ईद मनाने का मज़ा आता है। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस की कामयाबी पर पूरी कौम मुबारकबाद के मुस्तहिक है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सिपा सलार जनरल आसिम मुनीर की लीडरशिप की बदौलत आज हम सुख का सांस ले रहे हैं। इस मौके पर सलमान हुसैन सुल्तानी, जहांगीर खान, काशिफ सत्तार, नवीद सूफ़ी चौधरी, मौलादार मोहिउद्दीन, हमाद कुरैशी और राय ताहिर मौजूद थे, जबकि गोहर भट्ट, मोहम्मद अली, खालिद हाशमी, मियां वकास, अब्दुर्रहमान और हाफिज़ अयाज भी हमरा थे। अब यहाँ पर बात करें घर के कामों से फारिग होने के बाद दोस्तों की बैठक। शहरियों का कहना है कि दोस्तों के साथ गुजारे ये हसीन पल हमेशा याद रहेंगे। मज़ीद क्या तफसीलात है जानते हैं इब्राहिम कुरैशी से। जी इब्राहिम बताएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं शारजा में मौजूद हूँ। जिस तरह के ईद का पहला रोज़ जो है वो कुर्बानी का रोज़ होता है, दूसरा रोज़ जो है वो ससुराल और अहले खाना और ख़ानदान के साथ लोग वक्त गुजारते हैं, और तीसरे रोज़ जो है वो तमाम जो शोहर हजरात हैं, तमाम वो गरीबुल हाल लोग जो कि अपने ख़ानदान, ससुराल और जो है वो अपनी कुर्बानी के मामला से थोड़ा थक जाते हैं, तो फिर वो अपने दोस्तों के पास रुख करते हैं कि वो दोस्तों के पास आएँ, वक्त गुजारें। कैफियत दिल है वो क्या है और वो क्या कहना चाहेंगे, समझी बताएँ कि माशाल्लाह सियासी सरगर्मियों में किसी को कोई सियासी सरगर्मी है, किसी की कोई समाजी सरगर्मी है, तो आज जो है वो दोस्तों के साथ मिलकर कैसा लग रहा है, क्या कहना चाहेंगे ईद के रोज़ के हवाले से और ये दोस्तों के साथ जो बैठक है इस हवाले से। जी अस्सलाम वालेकुम। पहली बात तो ईद मुबारक बहुत बहुत सारे दोस्तों भाइयों को। 2 दिन ईद के गुजर गए थे फैमिली के साथ, तो आज हमने गेट टुगेदर किया अपने भाइयों के साथ, दोस्तों के साथ, ठीक है, फैमिली के साथ 2 दिन गुजारे हैं। थर्ड डे आज ईद का इस शादा लाहौर में सेलिब्रेट कर रहे हैं। सारे दोस्तों आप इकट्ठे हुए हैं तो बहुत हैप्पी फील कर रहे हैं। 10-15 साल के बाद इकट्ठे हुए हैं ऑलमोस्ट तकरीबन, तो अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है माशाल्लाह। दोस्तों से मिलते हैं, उनके लिए दुआएं करते हैं, उनके हालात अहवाल जानते हैं। आप मुझे बताएं कि इस ईद पर क्या पैगाम देना चाहेंगे उन लोगों को, दोस्तों को, कि किस तरह एंजॉय करना चाहिए ये तीसरा रोज़। बहुत से लोग परेशान हो जाते हैं, हेडेक हो जाते हैं और इस रोज़ सो रहे होते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं यही कहूँगा कि ईद का दिन है, सबको ईद मुबारक। और दूसरी बात ये है कि जैसे बेगमात ने 2 दिन में आपको पूरा टाइम दिया है, तो अब शुक्र है अल्लाह का, उनको छोड़ के हम आ गए हैं, तो सुकून से हम इंजॉय करेंगे। तो आप मुझे बताएं कि कैसा लग रहा है दोस्तों के साथ मिलकर, और क्या इस वक्त जो है वो दिल की हाल है, दिल की कैफियत है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत अच्छा लग रहा है। जैसा कि मनीर भुट्टर साहब ने गल की थी भाई ने, तो ये बड़ी खुशी हुई, सारे दोस्त इकट्ठे हुए हैं। तो आप मुझे बताएं कि कितना जो है वो दोस्तों का इस वक्त मजमा इकट्ठा हुआ है, कितने जो आने वाले थे नहीं आए और कितने आने वाले आ चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, सारे दोस्तों की यही कोशिश होती है कि गैदरिंग जहाँ पे इकट्ठी हो वहाँ पे शरीक हों। कुछ दोस्तों के वो भाई ने आगे बात की है, किसी को लोगों को इजाज़त भी नहीं मिलती,
और कुछ लोग वैसे ऐसे भी हैं जो कश्तियाँ जला के आए हुए हैं। घर जाएंगे तो फिर देखी जाएगी। ठीक है, मतलब है बहुत सारे मिस हैं। बस बिल्कुल ऐसे ही है। तो जी ये एक ईद की खुशी है, ये एक ईद का मंजर है, ये एक माशाल्लाह माहौल है जो इन तमाम दोस्त अहबाब ने जो है वो जमाया हुआ है, और वो दूसरों को भी ये तरगीब दे रहे हैं, ये दर्स दे रहे हैं कि आएँ इस रोज़ ईद के तीसरे रोज़ वक्त निकाल के अपने दोस्त अहबाब के साथ बैठे। इब्राहिम कुरैशी, बहुत शुक्रिया आपका। सदर पीपी 172 मलिक मोहम्मद ज़ीशान का यूसी 93 ईद मिलन पार्टी के एहतमाम लीगी वर्कर्स और अहले इलाका ने शिरकत की। सदर पीपी 172 मलिक मोहम्मद ज़ीशान ने लीगी वर्कर्स को ईद मिलन केक और मिठाई भी खिलाई। मलिक ज़ीशान का कहना था कि ईद के तीनों दिन हल्के में गुजरे हैं, कारकुनान से मुलाकात हुई है, असल ईद का मज़ा उन्हीं वर्कर्स के दरमियान आता है। इस मौके पर गुलाम रसूल भोला, मलिक अमानत अली, मियां अब्दुल शकूर, एडवोकेट और राना लुकमान हमरा थे। फ़खरुद्दीन जट, राना शबीर अहमद, मलिक यासिन, मोहम्मद परवेज़ आशिक जट भी शरीक हुए। चौधरी असलम, मुमताज़ बीबी, समीना अशरफ, हाफिज़ अशरफ, लियाकत जट और मोहम्मद रफ़ीक भी मौजूद थे। सदर काफ लीग लाहौर मियां वाहिद अहमद की जानिब से ईद मिलन पार्टी, पार्टी वर्कर्स, दोस्त अहबाब, कौमी यकजहती, अमन इत्तेहाद कमेटी अहदेदारान ने शिरकत की। सदर मुस्लिम लीग काफ लाहौर मियां वाहिद अहमद की जानिब से ईद मिलन पार्टी में चौधरी रफ़ाकत अली, राशिद अली, मोहम्मद यासिन शरीक हुए। तिलाल एजाज, मोहम्मद हुसैन शमसी, इरफान भट्ट ने शिरकत की। चौधरी शुजा रहमान, कबीर शाह, फौजी खालिद, तारिक जट और दीगर मौजूद थे। तकरीब में शुरका ने कुर्बानी के जज्बे पर इज़हार किया और हालात हाजरा पर सीर हासिल गुफ्तगू की। सीनियर सहाफ़ी सुहेल वड़ाइच के एजाज़ में ईद के तीसरे रोज़ ईद मिलन पार्टी ताजिर चौधरी मोहसन की जानिब से एहतमाम किया गया। गार्डन टाउन में होने वाली ईद मिलन पार्टी में समाजी रहनुमा शाहिद कादिर, साबिक IG पंजाब आमिर जुल्फ़िकार खान, सेनेटर असद अशरफ ने शिरकत की। DIG ट्रेनिंग लाहौर राव मुनीर ज़िया, कंट्री हेड अलाइड बैंक फैसल गौरी शरीक हुए। मेंबर चैम्बर ऑफ कॉमर्स दुबई अली रज़ा, ज़ुहैब भट्ट, शबीर उस्मानी तकरीब का हिस्सा बने। DSP हाजी अकरम, हाफिज़ अमीन अली अवान, सियाम मोहसन, असफन मोहसन समेत दीगर मौजूद थे। तकरीब में शाहिद कादिर ने मेहमानों को खुशामदीद कहा। सीनियर सहाफ़ी सुहेल वड़ाइच का कहना था ईद का तीसरा रोज़ दोस्तों की महफिल का होता है, ईद दोस्तों को इकट्ठा करने का एक बहाना है। ईद के तीसरे रोज़ भी कुर्बानी की गई, घरों में दावतों का सिलसिला जारी रहा। ख़वातीन मज़ेदार पकवान तैयार करने में मसरूफ़ रहीं, जबकि किसी ने बनाया पुलाव तो किसी ने बनाई मटन कढ़ाई। ख़वातीन कहती हैं घरों में रौनकें लगी हुई हैं, ख़ानदान के अफराद आ रहे हैं और सब मिलकर खुशगवार माहौल में खाने खा रहे हैं। ईद एक दूसरे को करीब लाती है और मोहब्बत बढ़ाती है। वाघा बॉर्डर पर सिख यात्रियों का अलामती इस्तकबाल। यात्रियों ने सिख मजहब के गुरुवर्जन देव जी के शहीदी दिन के पाकिस्तान में रसूमात के लिए आना था, मगर भारत ने रोक दिया। तकरीब में सूबाई वज़ीर रमेश सिंह अरोड़ा ने बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत की। हर साल सिख यात्री 9 जून को पाकिस्तान आते हैं और गुरु अर्जन देव जी के शहीदी दिन की मजहबी रसूमात अदा करते हैं। पाकिस्तान सिख यात्रियों के इस्तकबाल के लिए तैयार था और इंतजामात भी मुकम्मल कर लिए थे, मगर भारत ने आने से रोक दिया। वाहगा बॉर्डर पर सिख यात्रियों के अलामती इस्तकबाल की तकरीब में सूबाई वजीर रमेश सिंह अरोड़ा ने इजहार अफसोस किया कि पाकिस्तान सिखों का दूसरा घर है। पिछले दिनों जब भारत ने पाकिस्तान पे एग्रेशन की, पाकिस्तान ने एक ही बात की कि हम अमन के पुजारी हैं, अब हम इस खित्ते के अंदर अमन चाहते हैं। तो पाकिस्तान के अंदर सिख यात्री मौजूद है, ना तो उनका वीज़ा कैंसिल किया जाएगा, ना उनको कभी वीज़ा से मना किया जाएगा। और फिर हुआ क्या? हुआ ये कि 7 तारीख से करतारपुर कॉरिडोर को भारत की तरफ से बंद कर दिया गया। हमारी तरफ से दरवाज़ा आज भी खुला है। एडिशनल सेक्रेटरी श्राइन सैफुल्लाह खोखर का कहना था कि पाकिस्तान के दरवाजे हमेशा खुले रहेंगे। एक अफसोस का मकाम है कि हम सब लोग अपनी तमाम तर तैयारियां मुकम्मल करके यहाँ हाजिर हुए हैं, लेकिन इंडिया से कोई संगतें नहीं आईं, जबकि हुकूमत पाकिस्तान की एक वाज़ेह पॉलिसी है, वाज़ेह मौक़िफ़ है, वाज़ेह स्टेटमेंट हमने दी है कि जितनी भी पाबंदियाँ लग जाएँ, जैसे भी कशीदा हालात हों दोनों मुल्कों के दरमियान,
पाकिस्तान इंडिया से तशरीफ़ लाने वाले सिख यात्रीज़ को हमेशा वेलकम करेगा। पाकिस्तानी सिख यात्रियों ने हिंदुस्तान की शर्मनाक हरकत पर मायूसी का इजहार किया। पाकिस्तान की तरफ से पूरी की पूरी तैयारी है, सारी कौम यहाँ पे पहुँची है आपको वेलकम कहने के लिए, लेकिन बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आप नहीं पहुँच पाए। ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਪੰਡਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮਿਊਨਿਟੀ, ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਈ ਹੈ, ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਕੀ ਹਿੰਦੂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਲੈਣ ਜਾਵਾਂਗੇ। रमेश सिंह अरोड़ा ने वाहगा बॉर्डर पर तरक्याती कामों का जायजा लिया, इमिग्रेशन ऑफिस का भी मुआयना किया। कैमरामैन अंजुम शहजाद के साथ अरबाज खान, सिटी 42। CBD पंजाब का खूबसूरत तोहफा रूट 47 पर मसनूई झील में फवारे नस्फ, फवारे 100 फुट तक पानी की धार छोड़ सकते हैं। क्यूब और सामिलिन ट्री मोनूमेंट रात के वक्त रोशनी बखेरते हैं। रूट 47 शहरियों के लिए नया तफरीही और फोटो स्पॉट बन गया। CBD पंजाब का खूबसूरत तोहफा रूट 47 लाहौरियों के लिए नया तफरीही और फोटो स्पॉट मुकाम बन गया। रूट 47 पर मसनूई झील में फवारे नस्ब कर दिए। झील के फवारे 100 फुट तक पानी की धार छोड़ सकते हैं। झील को बरकी, कुमकुमा और दिलफरेब मोन्यूमेंट से सजा दिया गया। झील के फवारे बदबू और काई से बचाव का माहौल दोस्त हल हैं। क्यूब और सामने ट्री मोन्यूमेंट रात के वक्त रोशनी बखेरते हैं। चेयरमैन CBD पंजाब इमरान अमीन का कहना था, CBD का हर मंसूबा हर तबके के लिए है। रूट 47 की झील जल्द आवाम के लिए खोल दी जाएगी। लाहौर रेस क्लब में ईद कप घोड़ रेस शायकीन की बड़ी तादाद घोड़ रेस देखने रेस क्लब पहुंचे। वाइनेक्स नामी घोड़ी ने ईद कप टाइटल जीत लिया। ईद उल अजहा के मौका पर लाहौर रेस क्लब में ईद कप गुड़ रेस का इनकाद किया गया। गुड़ रेस में सैमसन, किटकैट, वाइनेक्स और गोल्डन जुबली ने हिस्सा लिया। वाइनेक्स नामी घोड़ी ने रेस जीतकर ईद कप टाइटल अपने नाम किया। फातिहा घोड़ी के सवार अवैस अंजम को ट्रॉफी दी गई। उनका कहना था कि कामयाबी भरपूर मेहनत का समर है। वाइनेक्स के मालकान ने भी ईद कप जीतने पर इजहार मुसरत किया। सेकंड टाइम भी जो ईद कप हुआ था वो भी मैंने ही विन किया था रॉयल क्राउन हॉर्स पे, तो अल्हम्दुलिल्लाह इस बार भी अल्लाह पाक ने मुझे फतह दी है। तो काफ़ी अच्छी रेस हुई है, बेटर रेस थी। एक सामने फेवरेट हॉर्स था तो बट अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने काफ़ी मुझे इज़्ज़त दी है। जी माशाल्लाह बहुत खुशी हुई है और अल्लाह ताला का शुक्र है कि मेरी घोड़ी वीनेक्स ने ईद कप आज जीता है और बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छी रेस की आज कप रेस विन की। हम अपनी घोड़ी पे कंप्लीट पूरी उम्मीद थे कि इंशाल्लाह विन करेगी और उसने प्रूव किया है और हम बड़े खुश हैं। ईद कप है, ऊपर से स्पेशली ईद बिल्कुल रिसेंटली गुजरी है तो ज़्यादा खुशी इस चीज़ की है कि ईद कप है स्पेशली, तो हमारी घोड़ी ने विन किया है माशाल्लाह। शायकीन की बड़ी तादाद ईद कप गुड़ रेस देखने लाहौर रेस क्लब पहुंची और ईद उल अजहा के मौका पर गुड़ रेस के इनकाद को सराहा। कैमरामैन सज्जाद हुसैन के हमरा रुमेल इलियास, सिटी 42। ग्रीन टाउन ब्लॉक 3 ब्लू ग्राउंड में ईद मिलन टेनिस बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट MPA मियां इमरान जावेद ने बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत की। ईद मिलन टेनिस बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट में इलाके की 8 टीमों ने हिस्सा लिया। इस हवाले से मज़ीद बात करेंगे रुमेल इलियास से। जी रुमेल। बिल्कुल ईद उल अजहा की मुनासबत से ग्रीन टाउन के बिल्लू पार्क में टेनिस बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट का इनकाद किया गया है, जिसमें MPA मियां जावेद इमरान ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की है। MPA मियां जावेद इमरान ने क्रिकेट खेल कर इस टूर्नामेंट का इफ्तिताह किया है। बड़ी तादाद में इलाका मकीन इस टूर्नामेंट को देखने के लिए पहुंचे हैं। MPA जावेद इमरान मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि इस हवाले से इनका क्या कहना है। जी जावेद साहब, यहाँ पर आप आए हैं टूर्नामेंट में, आपने क्रिकेट खेल कर इफ्तिताह किया, क्या कहेंगे, कैसा लगा आपको लोगों का जोश व जज्बा ईद के मौका पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज आपने देखा कि वो पुराने दौर की याद ताज़ा हो गई और आज के नौजवान जो है वो हेल्थी एक्टिविटी के अंदर मसरूफ़ है। ये एक बाइस खुशी है पाकिस्तान और स्पेशली पंजाब के नौजवानों के लिए। मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने जैसे खेलता पंजाब का प्रोग्राम है, तो इनके फ्यूचर के लिए बहुत सारी आगे फैसिलिटीज़ हैं। आज मैं यहाँ आया हूँ और मैं मोहतरमा की तरफ से उनसे ये रिक्वेस्ट करेंगे कि इस ग्राउंड को डेवलप किया जाए, नौजवानों के लिए खूबसूरत एक्टिविटी खेल की बनाई जाए और इंशाल्लाह ताला ग्रीन टाउन में एक स्पोर्ट्स ग्राउंड भी दिया जाएगा। इंशाल्लाह ताला इस ग्रीन टाउन में एक स्पोर्ट्स ग्राउंड बनाया जाएगा जहां पे ये नौजवान यहाँ से सीखेंगे खेल को और पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगे। और ईद के इस मौका पर ये सब मिलजुल कर जिस तरह से एक ईद मना रहे हैं और ख़ुशी का इजहार कर रहे हैं, इसकी मिसाल जो है मैं इन सब भाइयों को, बच्चों को सलाम पेश करता हूँ और सबको मेरी तरफ से ईद मुबारक। बिल्कुल MPA इमरान जावेद की आपने गुफ्तगू सुनी, जिन्होंने सराहा है इंतज़ामिया को, जिन्होंने ईद के पुरमसरत मौका पर इस टेनिस बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट का जो इनकाद है वो किया है। जो खिलाड़ी इस टूर्नामेंट में शरीक हैं उनसे भी MPA मियां इमरान जावेद ने गुफ्तगू की है और उनकी भी जो काविश है उसे सराहा गया है। जी रुमेल, बहुत शुक्रिया आपका। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना।